Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Rural Livelihood in Civics, and under this chapter we are discussing the various types of economic activities which are done in a particular village, Kalpattu, that is in Tamil Nadu. But it's not only about Kalpattu. Actually, whatever we are studying regarding the village Kalpattu, it is almost the same case, the same situation prevails in almost all the villages of our country. ओके सो इट्स नॉट कि हम केवल कलपट्टू विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, बल्कि नॉर्मली यही सिचुएशंस होती हैं पूरे हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट सभी गांवों में. ठीक है. एंड इन दिस रिगार्ड वी हैव डिस्कस्ड देयर वाज अ लार्ज फार्मर रामालिंगम, very big farmer who owned 20 acres of land, and we have also discussed Tulsi was there, who was a landless laborer, and we saw how difficult her life was. At workplace she has to do a lot of physical work, and in her house also, in order to get the basic needs of the life, she has to work a lot. And the problems we have also discussed, which was faced by Tulsi at her workplace as well as in her house. And then we have discussed about another farmer, that is Sekhar. The name of the farmer is Sekhar. Sekhar is a small farmer who owned 2 acres of land. And in this situation we have seen कि Sekhar used to do agricultural activity in his land. He did not require any labor to hire. उसको किसी लेबर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. All the family members used to work in the farm, and at the time of harvesting he needed some labor. So in that situation what he did, he asked his friends to help him, and the friends were there to help him. But when the friends were in need of labor, they also asked Sekhar to work. तो इस तरह से आपस में वो एक दूसरे की हेल्प करके अपने लेबर से रिलेटेड जो नीड्स होते थे वो पूरे कर लेते थे. एंड देन वी हैव सीन कि किस तरह से उसको अपने एग्रीकल्चरल वर्क को करने के लिए ही नीडेड मॉनेटरी हेल्प, बिकॉज वो एक स्मॉल फार्मर था. ही डिड नॉट हैव मनी टू purchase seeds and fertilizers. So what he did, he purchased these seeds and fertilizers from a trader without money, है ना. उसको लोन पे वो ले लेता है फर्टिलाइजर और सीड्स, और उसके बदले में उसे क्या करना होता है कि वॉट एवर क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड इन हिज फील्ड, उसको वो किसको बेचता है, उसी ट्रेडर को बेचता है जिससे उसने पेस्टिसाइड्स और सीड्स लोन लिया है. ठीक है, उसी को वो बेचता है. और इसके कारण क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो उससे कम प्राइस पे खरीदता है, क्योंकि ट्रेडर जो है उसका वो जानता है कि उसने उसको हेल्प किया है, उसको सीड्स और फर्टिलाइजर बिना पैसे के उस समय दिया, तभी वो खेती कर पाया, तो वो उसको मिसयूज करता है. और इस कारण से वो उससे जो चीज़ें खरीदता है, जब क्रॉप तैयार हो जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, और जब वो सेल करना होता है शेखर को, तो वो शेखर इज बाउंड टू सेल द क्रॉप टू द ट्रेडर ओनली. ट्रेडर को ही उसको सेल करना है ना. तो और ट्रेडर उससे कम प्राइस लेता है, तो इस तरह से उसको लॉस होता है. वी हैव डिस्कस्ड all these things, and now we will discuss a new topic, and that is on being in debt. कि क्या होता है जब एक इंसान डेप्ट में फंसता है, तो क्या क्या किस किस तरह के सिचुएशंस होते हैं. सो आवर टॉपिक इज
on being in debt. डेट मीन्स जो जब हमें किसी से उधार लेनी पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेब्ट कहते हैं. ओके. As you have read above, very often farmers like Sekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides. है ना? Basic things. These are basic for agriculture. In order to do the agricultural activities, all these things are required. Without seeds, fertilizer and pesticides, farmers will not be able to start the farming activity. है ना? So often they borrow this money from money lenders. तो अभी हमने क्या देखा कि शेखर के केस में शेखर ने ये मनी किससे लिया था, ट्रेडर से लिया था. ट्रेडर वो होते हैं जो कि सेल और परचेज का काम करते हैं, है ना. तो जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी हम मनी ले सकते हैं अगर हमें नीड होती है. तो गांव में, विलेज में यही हमारे ट्रेंड होता है. पीपल प्रेफर, फार्मर्स प्रेफर टू टेक लोन्स फ्रॉम traders and they also take loans from money lenders. If the seeds are not of good quality or pests attack their crop, there can be a major crop failure. Now just think of a situation जिसमें कि जो small farmers हैं उन्होंने लोन लिया, या तो ट्रेडर से लिया या मनी लेंडर से लिया, जिससे भी लिया, दे हैव टेकन लोन इन ऑर्डर टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है. अब उसके बाद क्या हो रहा है कि सपोज बिकॉज ऑफ एनी रीजन लाइक सीड्स जो थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हो सकते हैं, या फिर कभी कभी पेस्ट के कारण भी कीड़े लग गए, पेस्ट, है ना. बिकॉज ऑफ पेस्ट, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई हो उसके कारण, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई हो, जितनी की रिक्वायरमेंट पानी की नहीं थी उससे ज़्यादा बारिश हो गई हो. तो देयर कैन बी सो मैनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच अ फार्मर कैन फेस क्रॉप फेलियर. क्रॉप फेल हो गया मीन्स वो जितना एक्सपेक्टेड था कि उसके, अगर उसके पास 2 एकड़ की लैंड है तो उस 2 एकड़ के लैंड से वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें इतना किलो पैडी जो है उस पर निकल जाएगा, वो नहीं हो पाया. पूरी की पूरी जो क्रॉप थी वो बर्बाद हो गई. ये किसी भी रीज़न से कभी भी बर्बाद हो सकती है. कभी वो इंसेक्ट्स के कारण हो जाती है, कभी सीड्स खराब हो सकते हैं, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, या फिर कभी बारिश हुई ही नहीं. उस तरह के कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें कि क्रॉप फेलियर हो सकता है. तो अब हमें ये सोचना है कि जो फार्मर है उसने तो लोन लिया हुआ है ना, और ये जो लोन उसने लिया है वो लोन कैसे वो रीपे करेगा. हाउ दिस लोन विल बी रीपेड. दिस लोन विल बी रीपेड बाय द क्रॉप ओनली. जो क्रॉप उसकी तैयार होगी उस क्रॉप को वो सेल करके ही लोन रिपेमेंट करता है. अगर उसने जैसे ट्रेडर से लोन लिया है तो वो क्या करता है, जैसे शेखर का हमने एग्जांपल देखा, शेखर ने क्या किया, ट्रेडर से उसने लोन लिया था, तो जब क्रॉप उसका तैयार हुआ तो उसने ट्रेडर को ही क्रॉप बेच दिया, है ना. तो अब वो कंडीशन जस्ट हमें वी हैव टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन इन विच द क्रॉप हैज फेल्ड. ठीक है, क्रॉप हुआ ही नहीं. अब अगर शेखर जैसा जो किसान है जिसने ट्रेडर से पैसे लिए हैं सीड्स और पेस्टिसाइड्स के लिए, सीड्स और फर्टिलाइजर के लिए, अब उसको वापस वो कैसे देंगे, क्योंकि क्रॉप तो फेल हो गई, है ना. तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम बन जाती है कि इस जो कर्जा उनके सिर पे है, जो लोन उनके सिर पे, उस लोन को वो कैसे पूरा करें. ठीक है. द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined if the monsoon does not bring enough rain. I told you ना कि ऐसा भी हो सकता है कि बारिश बहुत कम हो, उस कारण भी क्रॉप फेल हो सकता है. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. And in that condition, in the condition of crop failure, the farmers are not able to pay back the loan. है ना, जो भी लोन उन्होंने लिया उसको वो पे बैक नहीं कर पाते हैं. And for the family to survive, they may even have to borrow more money. Because we have seen in the case of शेखर कि जो भी शेखर के फार्म से
वॉट एवर ही इज प्रोड्यूसिंग उसका एक पार्ट वो दे देता है ट्रेडर को लोन पूरा करने के लिए। जो बचते हैं वो क्या यूज होता है, वो डोमेस्टिक यूज होता है, वो घर में खाने के काम आते हैं, जो कि उसके पूरे साल भर में 8 मंथ उससे उसका काम चल जाता है ना। तो अब वो सिचुएशन हम सोच रहे हैं जिसमें क्रॉप फेलियर हो गई। क्रॉप फेलियर होने के कारण द फर्स्ट प्रॉब्लम विच फार्मर फेसेस इज हाउ टू रीपे द लोन। जो लोन उसने लिया उसको कैसे रीपे किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी वो प्रोड्यूस करता है, जो भी क्रॉप उसने प्रोड्यूस की थी, उससे उसके घर के खर्चे चलते हैं, उससे घर के खाने से रिलेटेड जो नीड्स है वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉप जो भी तैयार हुआ, जैसे पैडी की क्रॉप थी वो तैयार हो गई, तो उससे हमारे घर के जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। लेकिन अब तो क्रॉप फेल हो गया, अब क्या होगा, अब उसको अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके फूड रिलेटेड नीड्स को पूरा, इवन मतलब फूड तक की नीड को वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके तो क्रॉप फेल हो गई है। तो अब वो अपने फैमिली के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे पूरा करेगा। उसको पूरा करने के लिए उसको और भी लोन चाहिए, है ना। अब और लोन उसको लेना पड़ेगा। जितना लोन वो ले रखा है पहले से उसको तो वो रीपे कर ही नहीं पा रहा है, बट द सिचुएशन इज सच दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, है ना, वो अगर सपोज उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं क्योंकि क्रॉप फेल हो गया है, क्रॉप्स भी नहीं है, ग्रेन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, अगर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो फिर तो उसकी फैमिली और वो सब लोग दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाए, लोन लेना पड़ेगा फिर से। तो ये दिस इज ऑन बीइंग इन डेब्ट। किस तरह से एक जो पुअर फार्मर है वो डेब्ट के चक्कर में फंसता जाता है और उससे निकल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। So what we find, soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक बार अगर सिर्फ एक बार की जो क्रॉप है अगर वो फेल हो जाती है तो एक क्रॉप फेलियर जो है वो एक स्मॉल फार्मर को एक जिसको हम डेब्ट ट्रैप कह सकते हैं। ट्रैप क्या होता है, जाल होता है ना। अगर हम किसी जाल में फंस जाते हैं तो फिर हमारे लिए उस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो उसी तरह का ये डेब्ट का ट्रैप होता है, जिसमें कि एक बार उसने लोन लिया पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और सीड्स खरीदने के लिए ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल काम को कर सके, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन उसका क्रॉप फेलियर हो गया। बस ये एक सिंगल क्रॉप फेलियर उसको एक डेब्ट के ट्रैप में इस तरह से फंसा सकता है कि जिससे उसका निकल पाना बहुत ही मतलब नियरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो कभी भी वो इतना नहीं अर्न कर पाएगा कि वो अपने पीछे के लोन्स को पूरा कर दे। अभी हमने लोन लिया, क्रॉप फेलियर हुआ, हम रीपे नहीं कर पाए, हमको फिर से लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो फैमिली को सरवाइव करना है, जिंदा रहने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव उनको खाना चाहिए, उनके नीड्स हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। हमारा क्रॉप खत्म हो गया, क्रॉप फेल हो गया, तो फिर हमें बोरो फिर से करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ईयर जब क्रॉप की सीजन आएगी तो फिर अगेन ही विल हैव टू टेक लोन इन ऑर्डर टू परचेज सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये 3 बार ही उसने लोन ले लिया, अब जा करके उसका एक क्रॉप मान लो कि अच्छे से हो जाता है। अब जो क्रॉप बढ़िया से उसका हुआ उससे वो ये 3 टाइम के जो लोन है उसको वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम वो एक लोन को पूरा कर पाएगा, 2 लोन को मैक्सिमम पूरा कर पाएगा, लेकिन अगर 2 लोन भी पूरा करेगा तो फिर उसको खाने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी में वो फंसेगा। तो ये जो एक क्रॉप फेलियर जो हो जाती है वो एक फार्मर को डेब्ट ट्रैप में फंसा देती है, जिस ट्रैप से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट।
In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. If you are aware of your surroundings, if you are watching the news in television or reading newspaper, then you must have come across such news like कि किसी फार्मर ने महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ज़्यादा हमें सुनने के लिए मिलता है। क्यों सुसाइड करते हैं फार्मर? इसी डेब्ट ट्रैप में जब वो फंस जाते हैं जिसमें कि वो जान रहे होते हैं कि अब वो चाहे कितना भी कमा ले, जो उनकी कैपेसिटी है उसके ही अकॉर्डिंगली वो कमा सकते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी अर्न कर ले, इस उधार का जो चक्र है, उधार का जो जाल है, अब वो उस जाल से नहीं निकल सकते हैं। दैट इज 100% वो श्योर हो जाते हैं। और इस कंडीशन से निकलने के लिए उनको क्या रास्ता दिखाई देता है कि वो सुसाइड कर ले, जो कि सबसे गलत रास्ता कहा जा सकता है। बट उनके सामने कोई उपाय नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है। और इसमें प्रॉब्लम तब क्यों प्रॉब्लम ये बढ़ती है, ये जो हम लोन ले रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स लोन ले रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो फार्मर्स हमारे लोन ले रहे हैं वो किससे लोन ले रहे हैं? वो लोन ले रहे हैं ट्रेडर्स से, वो लोन ले रहे हैं मनी लेंडर से। अगर यही लोन उन्होंने बैंक से लिया होता तो ये कंडीशन शायद उनकी उतनी बुरी नहीं होती। हालांकि बैंक को भी रीपेमेंट उनको करना होता है, लेकिन ये जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स हैं, ये जब किसी को लोन देते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दे एक्सप्लॉयट द पीपल, स्पेशली द पुअर पीपल, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, तो वो पुअर हैं, वो डर के रहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो this is the situation. And now we will see Ramalingam and Karuthamma. Okay? अब हम देखेंगे कि रामालिंगम और करुथम्मा की जो कंडीशन है वो तो बहुत अच्छी है, बिकॉज ही इज़ अ बिग फार्मर और उसको किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम तो है ही नहीं, उल्टे वो बहुत प्रॉफिट में उसका काम चलता है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू know about Ramalingam and Karuthamma. In addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. तो what we see कि उसके पास 20 acres land तो है ही, हमने देखा था पीछे। And other than this land, Ramalingam also owns a rice mill. जिस राइस मिल में हमने देखा था ना शेखर काम करता था, तो राइस मिल भी वो ओन करता है। बिसाइड्स दिस राइस मिल ही ऑल्सो ओन्स अ शॉप, और उस शॉप में किस चीज़ की बिक्री होती है, क्या चीज़ सेल होता है उस शॉप में? द शॉप सेल्स सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको सेल करती है। ठीक है। फॉर द राइस मिल they used some of their own money and also borrowed from the government bank. अभी मैंने क्या बोला कि जो पुअर पीपल हैं they take loan from traders, from money lenders. They don't want to go to banks. उनको बैंक जाने में एक तरह का फियर होता है, because they are illiterate people. Mostly जो हमारे यहाँ जो पुअर फार्मर्स हैं they are illiterate. तो उनको बैंक जाने में डर लगता है कि वहाँ पर हमसे पता नहीं किस चीज़ पे साइन करवा लिया जाएगा, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वो रख लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन जाएगी। इस तरह का जो फियर है वो उनके मन में रहता है। एंड दे फील मोर सेफ इफ़ दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। जबकि कंडीशन जो है वो उल्टी है। जैसे अभी हम लोग रामालिंगम को देख रहे हैं, रामालिंगम एक रिच फार्मर है, उसके पास इतना सारा लैंड है, और जब उसने राइस मिल ओपन किया तो उसने राइस मिल जो ओपन किया तो उसको पैसे चाहिए थे। राइस मिल बहुत कॉस्टली होता है, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो कुछ पैसे तो रामालिंगम के पास था जो कि उसने अपना पैसा लगाया राइस मिल खोलने में, बट कुछ पैसे उसको भी लोन लेना पड़ा था।
अब उसने कहाँ से लोन लिया? ही टुक लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक। जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। बैंक को ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बैंक अपने मन से अपने हिसाब से चीजें नहीं करती है। और ये जो ट्रेडर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री। दे आर नॉट सपोज टू फॉलो एनी रूल्स। उनको कोई रूल फॉलो नहीं करना है। वो अपने हिसाब से किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक्स के ऊपर कौन होता है? बैंक से भी सारी जो कमर्शियल बैंक से जो लोन्स देते हैं लोगों को, उनके ऊपर होती है रिजर्व बैंक। और वो उसको रेगुलेट करती है, देखती है कि जो हमारी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो सही ढंग से काम कर रही है नहीं, गरीबों को लोन दे रही है या नहीं, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, क्योंकि आरबीआई जो है वो उनको हर समय देख रहा होता है। तो जो हमारे कंट्री में जो रिच है ना, जैसे रामालिंगम जैसे फार्मर जो कि बहुत रिच है, वो क्या कर रहे हैं? वो बैंक से लोन ले रहे हैं। और जो पुअर हैं वो ऐसे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से लोन ले रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। यही समस्या है हमारी, जो विलेज हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। तो राइस मिल में क्या होता है, पैडी जो है वो आती है, और फिर इस पैडी से क्या होता है कि राइस बनता है। So the rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby town. जो भी राइस मिल में प्रोड्यूस होता है, फिर उसको नियर बाई टाउन्स में जो ट्रेडर्स होते हैं वो उस राइस को परचेज करते हैं। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम। तो इससे क्या होता है, उनका जो रामालिंगम एंड करुथम्मा है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो उनकी रिचनेस है वो बढ़ती जाती है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में सारे फार्मर्स को हम कैटेगराइज करें तो हम क्या देखते हैं कि विलेज में 3 तरह के फार्मर्स होते हैं। एक जो फार्मर है वो सबसे बड़ा, कुछ फार्मर्स जो है, नॉट एक फार्मर, कुछ फार्मर्स जो है वो दे आर द लार्ज फार्मर्स, लाइक रामालिंगम। जैसे रामालिंगम है वैसे कुछ लार्ज फार्मर्स होते हैं, देन कुछ स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स होते हैं, एंड देन लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, द फार्मर्स who don't own land. In this example of Kalpattu village, we see Sekhar. Sekhar is a small farmer, and Tulsi is the landless farmer. Okay. So now we are going to a new segment, that is agricultural laborers and farmers in India. Okay. Now this is a new subtopic, agricultural laborers and farmers in India. In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Sekhar and a few big farmers like Ramalingam. तो वो जो 3 फार्मर्स का मैंने कैटेगरी बताया, 3 तरह के फार्मर, एक जो लैंडलेस है जो कि तुलसी है, एक स्मॉल फार्मर जो कि शेखर है, और एक लार्ज फार्मर या बिग फार्मर जैसे कि रामालिंगम है। In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. In our countries,
2 families out of 5 families are agricultural laborer families. अगर 5 families हैं तो उसमें से 2 लोग जो होंगे, 2 family जो होगी वो agricultural laborer होती हैं. All of them depend on the work they do on other people's field to earn a living. They are agricultural laborer. Why they are agricultural laborer? Because they don't own any piece of land, and that is why they have to work in the land of someone else. है ना, किसी और के लैंड में वो काम करते हैं और इस तरह से वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं. All of them depend on the work they do on other people's will to earn a living. Many of them are landless and others may own very small plots of land. So ये जो agricultural laborers होते हैं इनमें से जो most of them होते हैं they are landless. उनके पास कोई लैंड नहीं होती है. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैंड होती तो है बट वो बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होती है. ठीक है, तो ये जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होती है तो वो इतना नहीं उस लैंड में काम होता है कि वो उनकी पूरी की पूरी जो नीड है लाइफ की वो पूरी हो जाए. उसके लिए उनको दूसरे की लैंड में भी काम करना पड़ता है. ओके, इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर लैंड इज बेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स. है ना, हमने देखा कि वो जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक पार्ट तो उसका लोन देने में जा रहा है और बाकी जो बच रहे हैं उससे जो उसके फूड रिलेटेड नीड है दैट नीड इज फुलफिल्ड ओनली फॉर 8 months. अब बाकी के जो 4 months हैं उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है फूड से रिलेटेड उसको पूरा करने के लिए ही नीड टू डू सम अदर वर्क. अदरवाइज ही विल फेस, ही एंड हिज फैमिली विल फेस वेरी बिग प्रॉब्लम. सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाएगी. है ना, तो वो इतना नहीं जब एक स्मॉल फार्मर होता है जिसके पास एक बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है तो वो इतना अर्न नहीं कर पाता है उस पीस ऑफ लैंड से कि उसकी जो नीड्स है सारी की जो बेसिक नीड्स है वो आराम से पूरे हो सके. ओके, इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. जैसे शेखर की जिस तरह से हमने बात की, जो शेखर की कंडीशन थी वही कंडीशन हमारी कंट्री में 80% फार्मर्स की है. इट मीन्स कि 80% फार्मर्स जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड नहीं है कि उस लैंड से ही उनके सारे जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामालिंगम. 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20 फार्मर्स हैं जो कि बिग फार्मर्स हैं लाइक रामालिंगम, जिनके पास बहुत बड़ा लैंड है, पीस ऑफ लैंड बड़ा है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो बहुत रिच है और वो और भी रिच होते जा रहे हैं. है ना, सो दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज. अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट. तो उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है ना, जो लार्ज फार्मर्स हैं दे हैव अ वेरी बिग पीस ऑफ लैंड. तो जब लैंड उनके पास ज़्यादा होगी तो उनकी क्रॉप भी ज़्यादा होगी. तो जो क्रॉप जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर उस क्रॉप को वो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे. और वो सेल कहाँ करेंगे, दे विल सेल इन द मार्केट बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू सेल इट टू द ट्रेडर. जस्ट लाइक शेखर, जैसे शेखर की स्टोरी हमने पढ़ी कि शेखर इज बाउंड टू सेल द प्रोड्यूस ओनली टू द ट्रेडर बिकॉज ही हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द ट्रेडर फॉर पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स. है ना, तो अब शेखर की तरह रामालिंगम को ये नहीं ज़रूरी है कि वो ट्रेडर को बेचे, वो तो जाके मार्केट में बेचेगा तो उसको अपने जो क्रॉप है उसकी प्राइस भी सही मिलेगी और बहुत ज़्यादा क्रॉप होगा तो बहुत ज़्यादा उसकी उसे अर्निंग होगी उससे. Many of them have started other businesses such as shops, money lending, creating small factories also, etc. तो जब उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं अपने क्रॉप से कि जो उनकी फैमिली की नीड है वो पूरी हो जा रही है, उसके बाद भी उनके पास पैसे बचे रह रहे हैं. तो अब उस बचे पैसे का वो क्या करेंगे, उस बचे पैसे को से वो कुछ नया इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. दे कैन स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस. जैसे कि रामालिंगम ने एक राइस मिल ओपन कर दिया
या फिर वो कोई शॉप भी ओपन कर सकते हैं, या फिर वो कोई ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, या मनी लैंडिंग, जब उनके पास एक्स्ट्रा मनी जमा होने लगी तो वो क्या करेंगे कि मनी को लैंड करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, है ना। और लैंडलेस लेबर तो सबसे ज़्यादा पुअर कंडीशन में होते हैं। तो सी दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड नाउ वी विल continue our discussion in the next class.